Hello children, how are you all? I hope all of you are fine, safe at home and enjoying your revision lectures and learning a lot. Okay, I am back again with the new presentation. This presentation is for class 5. For English literature, we are having the book Together with Essence by Rachna Sagar. Today we are going to revise chapter number 4, The Making of Mahatma. The whole chapter is about Mahatma Gandhi, okay, whom we lovingly called Bapu, okay, जिनको हम प्यार से बापू भी कहते हैं. This is our lecture 1 for revision. So let's start today's lecture. Okay, so children, this is our chapter, The Making of Mahatma. It is a chapter from few memories of Mahatma Gandhi. Okay, it is written by or told by Mahatma Gandhi itself. So let's see what's there in the chapter. Okay, look, this is the picture of Bapu in his childhood. Okay, lovingly we call him Bapu. हम प्यार से उन्हें बापू जी या बापू कहते हैं. I was 7 when left Porbandar for Rajkot. Okay, this is Mahatma Gandhi is speaking this, that he was 7 years old when he left Porbandar for Rajkot. He was 7 years old when he left Porbandar for Rajkot. I could have been a mediocre student. Okay, always he was a mediocre student, means he was average student. I don't remember having ever told a lie to my school teacher or my classmates. Now Bapu, he doesn't remember that he had ever told कि उन्होंने कभी भी अपने टीचर्स या क्लासमेट्स को कभी भी कोई लाई, झूठ बोला हो. ओके, इट मीन्स ही वॉज ऑनेस्ट. I used to be very shy and avoided all company. बापू वॉज वेरी शाई बाय नेचर. शाई बाय नेचर मीन्स वो शर्मीले स्वभाव के थे. एंड ही यूज टू अवॉइड कंपनी ऑफ हिज क्लासमेट्स. माई बुक्स वर माई सोल कंपेनियंस. कंपेनियन मीन्स साथी, फ्रेंड. ओके, हिज बुक्स वर हिज फ्रेंड्स. There is an incident which occurred during examination of my first year at high school. Now he remember one incident, एक घटना उनको याद है, which he is sharing, जो उन्होंने हमसे शेयर की है या वो शेयर कर रहे हैं. Okay, it is the incident of his examination of first year. Okay, इंसिडेंट ऑफ हिज एग्जामिनेशन ऑफ फर्स्ट ईयर एट हाई स्कूल. हाई स्कूल में मिस्टर गाइल्स, द एजुकेशन इंस्पेक्टर, हैड कम ऑन अ विजिट फॉर इंस्पेक्शन. ओके, एग्जाम वॉज गोइंग ऑन एंड वन पर्सन, मिस्टर गाइल, ही केम एज एन एजुकेशन इंस्पेक्टर, एग्जामिनेशन इंस्पेक्टर in his school. He had set as 5 words for spelling test. Okay, now the education inspector, this is Mr. Giles, he set 5 words for spelling test. He gave them. One of the word was kettle. Okay, one of the word was kettle, Kettle, kettle. I had misspelt the word. Okay, this word was written wrong by Gandhi ji. गांधी जी ने इस वर्ड को misspelled, means spelling wrong कर दी. The teacher tried to help me with the point of his boot, and the teacher tried, टीचर ने कोशिश की उनकी हेल्प करने की with the point of his boot, अपने बूट के पॉइंट से. But I would not be prompted, लेकिन वो उससे भी प्रॉम्प्ट नहीं हुए, उन्होंने उससे हेल्प नहीं ली. He wanted me to copy the spelling from my neighbor's slate. Now the education inspector, Mr. Giles, he wanted him means Mr. Gandhi, Bapu Gandhi, to copy the spelling from my neighbor's slate. वो चाहते थे कि बापू जो हैं
वो अपने पास वाले बच्चे की मतलब पड़ोस वाले बच्चे की स्लेट से स्पेलिंग को कॉपी कर ले, चीट कर ले। ऑल द बॉयज एक्सेप्ट माई सेल्फ वर फाउंड हैव स्पेल्ड एवरी वर्ड करेक्टली। मेरे अलावा हर बच्चे के सारे वर्ड्स बिल्कुल करेक्ट थे। ओनली आई हैड बीन स्टूपिड, सिर्फ मैं ही एक स्टूपिड था। आई कुड नेवर लर्न द आर्ट ऑफ कॉपिंग, और उन्होंने कॉपी करने की आर्ट, नकल करने की आर्ट कभी नहीं सीखी। ओके, वन मोर इंसिडेंट आई वुड लाइक टू शेयर इज दैट एज अ रूल आई डिस्टेस्ट मीन्स डिसलाइक फॉर माई रीडिंग बियॉन्ड माई स्कूल लेसन्स। ओके, गांधी जी को सिर्फ उतना ही पढ़ना पसंद था जितना उनकी स्कूल की बुक्स में दिया था। उनको बाकी कुछ भी और पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। ही यूज टू डिसलाइक, उन्हें वो पसंद नहीं था। बट समहाउ माई आईज फेल ऑन अ बुक परचेज्ड बाय माई फादर, श्रवण पितृभक्ति नाटक। ओके, नाउ वंस हिज आईज फेल अपॉन अ बुक, एक बुक के ऊपर चली गई, ठीक है, एंड बुक का नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक। द बुक वॉज बेस्ड अपॉन श्रवण कुमार। ओके, श्रवण कुमार की माता पिता की भक्ति के ऊपर वो बुक लिखी गई थी। अ प्ले अबाउट श्रवण's डिवोशन टू हिज पेरेंट्स, ये एक प्ले लिखा गया था जो उसका श्रवण कुमार का अपने पेरेंट्स के लिए डिवोशन दिखाता था। आई रेड इट विद इंटेंस इंटेंस मीन्स डीप इंटरेस्ट, मैंने उसे बहुत इंटरेस्ट के साथ, गहन इंटरेस्ट के साथ पढ़ा। द बुक हैड अ पिक्चर ऑफ श्रवण। ओके, द बुक हैड अ पिक्चर, लुक बुक इज हैविंग अ पिक्चर ऑफ श्रवण, श्रवण कुमार, दिस इज श्रवण कुमार, कैरिंग बाय मीन्स ऑफ स्लिंग्स फिटेड। ओके, नाउ श्रवण कुमार स्लिंग्स पे फिटेड जो है अपने मम्मी पापा को ले जा रहे थे। कहाँ ले जा रहे थे? ऑन अ पिलग्रिमेज, एक तीर्थ यात्रा पे। ओके, नाउ वन मोर कैरेक्टर वॉज देयर हु वॉज हरीश चंद्र, और बापूजी इनके कैरेक्टर से भी बहुत इंस्पायर हुए। सो उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में ये दो कैरेक्टर थे जिनसे वो बहुत इंस्पायर हुए, एंड ही यूज्ड टू बिलीव दैट वी शुड ऑल्सो behave like them, and these both the characters are living in realities. My common sense tells me today that Harishchandra and Shravan are living in realities for me. Now उनको ये लगता था कि श्रवण कुमार और हरीशचंद्र जी दोनों ही रियलिटीज में उनके लिए हैं। ओके, मीन्स दे वर इन एक्चुअल फॉर हिम। Now children, we will learn word meanings. Okay, I am telling you Hindi of each word because English meaning is given in your book. English में meaning आपकी बुक्स में दिए हैं, मैं आपको हिंदी meaning बता रही हूँ, ठीक है। So we will revise mediocre, साधारण या औसत, average, avoided, दूर रहा, avoided means दूर रहा, soul, अकेला, प्रॉम्प्ट प्रेरित करना। ओके, हिज टीचर ट्राइड टू प्रॉम्प्ट महात्मा गांधी, या सहायता करना। डिसटेस्ट, द प्रोनाउंसिएशन इज डिसटेस्ट, ना पसंद। लेट्स रिवाइज, मीडियोकर साधारण या औसत, अवॉइडेड दूर रहा, सोल अकेला, प्रॉम्प्ट प्रेरित करना या सहायता करना, डिसटेस्ट ना पसंद। ओके, इंटेंस प्रबल इच्छा, डीप इंटरेस्ट, प्रबल इच्छा। वंडरिंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या भटकना। पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा, पीपल वर गोइंग फॉर अ पिलग्रिमेज, लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। वी आर गोइंग टू अ पिलग्रिमेज नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने एक तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। ओके, इंडेलिबल जो मिट ना सके, अमिट। ओडियल्स कठिन परिस्थिति,
परिस्थितियां होना चाहिए. ODLs मीन्स कठिन परिस्थितियां. Moved, द्रवित. Okay. Let's revise. Intense, प्रबल इच्छा. Wandering, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या भटकना. Pilgrimage, तीर्थ यात्रा. Indelible, जो मिट ना सके. Ordeals, कठिन परिस्थितियां. Moved, द्रवित. Okay, you have to learn the Hindi meanings. If you want to learn in Hindi, you can learn in Hindi. If you want to learn in English, you can learn in English. It's your choice. Okay. So now children, as you have seen in your book, there are no question answers in the chapter. Chapter में कोई question answers नहीं है. There are few word meanings, हम आप वो करेंगे. And remaining book exercises you have to do from your book. Book में मैंने पहले भी आपको करा दी हैं. नाउ वी कांट रिवाइज ईच एक्सरसाइज अगेन. आप उन्हें अपने बुक में से रिवाइज करो. ठीक है. और अगर आपने पहले नहीं अटेंड किए थे लेक्चर्स, देन अटेंड प्रीवियस लेक्चर्स. कंप्लीट दिस इंसिडेंट बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स. ठीक है. ये इंसिडेंट्स को गांधी जी की लाइफ में से इट इज गिवन अ शॉर्ट स्टोरी. यू हैव टू कंप्लीट दीज बाय फिलिंग द ब्लैंक्स. ब्लैंक्स को फिल करके आपको स्टोरी को कंप्लीट करना है. लेट्स सी. गांधी जी डिड मोस्ट ऑफ हिज स्कूलिंग एट. गांधी जी ने अपनी अधिकतर स्कूलिंग कहाँ पर की? ही डिड एट राजकोट बिकॉज ही वॉज 7 years old when he left पोरबंदर फॉर राजकोट. उन्होंने लगभग 7 साल की उम्र में पोरबंदर छोड़ के राजकोट आ गए. तो उन्होंने अपनी मोस्टली स्कूलिंग कहाँ की? राजकोट में. ही सेड ही वॉज अ मीडियोकर स्टूडेंट. ओके. गांधी जी एक मीडियोकर यानी कि एवरेज औसत छात्र थे. ही डिड नॉट एवर टेल अ लाई टू हिज टीचर्स और फेलो स्टूडेंट्स. उन्होंने कभी भी अपने टीचर्स को या अपने फेलो स्टूडेंट्स मीन्स अपने क्लासमेट्स को कभी भी कोई झूठ नहीं बोला. ही डिड नॉट टॉक टू हिज फेलो स्टूडेंट्स बिकॉज ही थॉट दैट दे वुड मेक फन ऑफ हिम. ही डिड नॉट टॉक, वो अपने फेलो स्टूडेंट से मीन्स अपने क्लासमेट से बात नहीं करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उनका मजाक उड़ाएंगे. गांधी जी वॉज वेरी ऑनेस्ट. गांधी जी बहुत ही ईमानदार थे. वेन द स्टूडेंट्स वर गिवन अ स्पेलिंग टेस्ट, गांधी जी डिड नॉट नो द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड कैटल. ओके. गांधी जी बहुत ईमानदार थे. जब बच्चों को एक स्पेलिंग टेस्ट दिया गया, गांधी जी कैटल वर्ड की स्पेलिंग नहीं जानते थे. ओके. कौन से वर्ड की नहीं जानते थे? कैटल. हिज टीचर ट्राइड टू हेल्प हिम. उनके टीचर ने उनकी कोशिश की मदद करने की. ही वॉन्टेड गांधी जी टू कॉपी द वर्ड फ्रॉम हिज नेबर्स स्लेट. वो चाहते थे कि गांधी जी वर्ड को अपने नेबर की स्लेट से कॉपी कर लें, उस अक्षर को स्पेलिंग ठीक कर लें अपने साथ वाले बच्चे की स्लेट में से. बट गांधी जी प्रेफर टू राइट रॉन्ग स्पेलिंग रादर देन कॉपिंग फ्रॉम हिज नेबर्स स्लेट. लेकिन गांधी जी ने प्रेफर किया राइटिंग रॉन्ग स्पेलिंग, गलत स्पेलिंग लिखना, रादर देन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मतलब की बजाय. ठीक है. कॉपी करने की बजाय उन्होंने गलत स्पेलिंग लिखना ठीक समझा. ठीक है. So, what are the answers? Kettle, teacher, copy, wrong, copying. Okay. These answers you have to fill in your book using a pencil. Whenever you do work in any of the book of and any of the subject, you have to work with pencil. Now children, this is revision assignment. I have given you few questions for which you have to read the chapter carefully because all the questions are from between the chapter. And for exam also आपको बुक एक्सरसाइजेज में जो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं उनके साथ साथ आपको चैप्टर्स को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है बिकॉज क्वेश्चंस कैन बी गिवन फ्रॉम बिटवीन द चैप्टर. क्वेश्चंस को चैप्टर के बीच में से भी दिया जा सकता है. सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. रिवीजन असाइनमेंट.
Answer the following questions in one word. You have to give answers in one word or only in one sentence. What was Gandhi ji's age when he left Porbandar for Rajkot? जब गांधी जी ने राजकोट पोरबंदर को छोड़ा राजकोट के लिए तो उनकी एज क्या थी? At what age गांधी जी was put into primary school? गांधी जी को प्राइमरी स्कूल कौन सी एज में डाला गया? चैप्टर पढ़ोगे तभी आंसर्स मिलेंगे, लेक्चर में सारे आंसर्स नहीं मिलेंगे. हु वर गांधी जी सोल कंपेनियंस? गांधी जी के सोल कंपेनियंस कौन थे? वट वॉज द नेम ऑफ एजुकेशन इंस्पेक्टर हु केम फॉर इंस्पेक्शन इन हिज स्कूल? जो एजुकेशन इंस्पेक्टर उनके स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए आए थे उनका नाम क्या था? हु परचेज द बुक श्रवण पितृभक्ति नाटक? किसने श्रवण पितृभक्ति नाटक बुक को परचेज किया था? विच टू कैरेक्टर्स इंस्पायर्ड गांधी जी? गांधी जी को कौन से दो कैरेक्टर्स ने इंस्पायर किया था? राइट टू एडजेक्टिव्स टू डिफाइन गांधी जी? गांधी जी की दो क्वालिटीज बताओ या दो एडजेक्टिव्स बताओ उनको या उनके कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए. वेयर वॉज श्रवण कैरिंग हिज पेरेंट्स? श्रवण अपने पेरेंट्स को कहाँ ले जा रहा था? ठीक है, ऑल द आंसर्स आर रियली रियली वेरी इजी. यू हैव टू रीड द चैप्टर एंड राइट द आंसर्स. नाउ as you all know, at the end of every lecture I give you homework solution of previous lecture. So children, this is your homework solution of chapter 3 lecture 1. Okay, 5 questions I gave you. Now we are going to share I'm going to share you the answers. Answer the following questions in brief. आपको 1 लाइन में आंसर्स देने थे. Where did the merchant live? The merchant lived in Egypt. मर्चेंट कहाँ रहता था? The merchant lived in Egypt. मर्चेंट इजिप्ट में रहता था. How many children did the merchant have? मर्चेंट के कितने चिल्ड्रन थे? Merchant had only one son. कुछ बच्चों ने मुझे होमवर्क में भेजा है 1 children. So you will write merchant had only one son. उसका सिर्फ एक बेटा था. नेक्स्ट, वट डिड मर्चेंट्स सन लाइक टू डू? मर्चेंट के बेटे को क्या करना अच्छा लगता था? द मर्चेंट्स सन लाइक टू रीड बुक्स एंड लर्न न्यू थिंग्स. मर्चेंट के बेटे को बुक्स पढ़ना और न्यू थिंग्स लर्न करना सीखना बहुत अच्छा लगता था. एट वट एज डिड मर्चेंट्स सन वॉज सेंट टू ग्रीस? मर्चेंट के बेटे को कौन सी उम्र में ग्रीस भेजा गया? Merchant's son was sent to Greece. Son went to Greece at the age of 20. Okay, you can write this also like it is asked in question. जैसे क्वेश्चंस में पूछा है at what age merchant son was sent to Greece, आप ये भी लिख सकते हो merchant's son was sent to Greece at the age of 20. ठीक है, and it is also correct. It is also correct. आप ये भी लिख सकते हो कि उसका बेटा 20 years की एज में गया था, या ये भी लिख सकते हो कि भेजा गया था. ठीक है, बोथ आर करेक्ट. व्हाट हैपेंड टू मर्चेंट व्हेन हिज सन वाज अवे? जब उसका बेटा दूर था या पढ़ने चला गया था तो मर्चेंट को क्या हुआ? द मर्चेंट फेल सिक व्हेन हिज सन वाज अवे. द मर्चेंट फेल सिक आप ये भी पूरा कर सकते हो. एंड डाइड, ये भी आंसर में लिख सकते हो द मर्चेंट डाइड व्हेन हिज सन वाज अवे, कि मर्चेंट की पीछे से डेथ हो गई जब उसका बेटा वहां नहीं था. बोथ द आंसर्स आर इक्वली करेक्ट. ओके, सो चिल्ड्रन, आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लर्निंग सेशन. नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to kindly subscribe our EdQuack YouTube channel, like and share our videos, tell your friends and relatives about our channel, tell them to like and share our videos, okay, and subscribe our channel. Now I hope all of you have enjoyed today's learning session. Children, take care of yourself, keep on learning new things. ओके, रिवीजन टाइम टू टाइम सब करते रहो. ठीक है, एंड रीड दीज चैप्टर्स फ्रॉम बुक ऑल्सो.
Thank you. Have a nice day. Goodbye.